डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है प्रीवियस ईयर के अंदर। एक वेज के ऊपर मास एम अटैच्ड है और वेज जो है ना एक्सेलरेशन से आगे की तरफ बढ़ रहा, तो ये एक्सेलरेशन इस मास के ऊपर स्यूडो फोर्स की तरह अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा और होगा क्या, इस डायरेक्शन में यम ये काम करेगा। तो ये एंगल इधर यहां पर यम ये cos थीटा काम करेगा, गोइंग टू बी एम ए cos थीटा बिकॉज दिस इज एंगल थीटा। तो ये एम ए cos थीटा है और फिर ये इस डायरेक्शन में क्या होगा, एम जी साइन थीटा। हमेशा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एम जी साइन थीटा काम करेगा। ये एम जी है, जी यानी कि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, ये एम ये है यानी कि इस एक्सेलरेशन का स्यूडो एक्सेलरेशन। अब ये और ये दोनों सेम है क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है बोल के बोला क्वेश्चन के अंदर। तो वी जस्ट राइट एम ये cos थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ठीक है, एम एम गेट्स कैंसल, ये इज इक्वल टू जी, ये cos थीटा नीचे जाएगा, sin थीटा ऊपर है, sin थीटा पे cos थीटा विल बिकम tan theta. So your answer is absolutely ready. That's it. Simple approach. My dear students, do you want me to solve the complex problem in a simple possible single step method? Then you are at the right place. Now just see here, this is the problem having friction. They are having friction on the table and the two masses, and one mass is hanging downwards. Then here asking is to find out what is the acceleration of this type of system here. All the three masses are going to be same. Then what is going to be an acceleration? That is the question here. The simplest possible method is acceleration is equal to hanging mass. Hanging mass. General formula of acceleration is net force by net mass. But here what is the net force? One is hanging, so we write it as mg. And there is a friction between two blocks resting on the table. Coefficient of friction is mu. So we can write this as mu mg. And here also one more friction force is acting in the backward direction. That is also mu mg. So why don't you take now here in this case acceleration is nothing but hanging force is mg, and these two combined together it is going to be 2mg. Okay, that is called as resultant force. And the net mass means you have to add all the three masses, that can be taken as 3m here. You cancel out m in all the places here. So acceleration is equal to, if you common out g, what is happening? 1 minus 2 mu into g divided by 3. Okay, so g is common here. So this is a simple solution. Thank you very much. Dear students, find the contact force in just a single step for this type of diagrams in laws of motion. What is the method? See, contact force, when both the blocks are moving with the force F, that is 24 newtons, 4 kg, 2 kg will combine together, move. But there is a contact force between these two. And what is that contact force? Let us find out here. The single step method is contact force is equal to mass on which the contact force is acting. So what is the mass on which the contact force is acting? 2 kg into net force which is going to act, that is taken as 24, and net mass. Net mass is 4 plus 2, which is nothing but 6. Okay, so 6 ones are 6 fours are 4 twos are 8 newtons is the contact force. That's it. दोस्तों शॉक मत होना, शॉक मत होना, इस शॉर्टकट को देखकर शॉक मत होना आप लोग। यहां पर देखो, ये इंक्लाइंड प्लेन है, 3 मासेस इस तरह अरेंज्ड है। क्वेश्चन पूछ रहा नीट 2022 के अंदर, चाहे तो आप देख लो कितना लंबा सॉल्यूशन है, फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, वो सब जरूरत नहीं है। तो अभी पूछ रहा 1 kg 2 kg मास के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक लाइन डाल देंगे। ओके, यहां पर एक लाइन डिवाइड कर देंगे। अब देखो यहां पर एक चीज अच्छी तरह से देख लो, हम ये फोर्स F1 है ना, उस साइड का जो दोनों मासेस है कंबाइंड टुगेदर दे कैन बी कंसीडर्ड एज m2, और ये वाला m1, ये दोनों मिला के m2 समझो, दोनों मिला के बोलो। ओके, तो इतना आसान मेथड में समझाऊंगा आप लोगों को। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स पूछ रहा ना। ओके, ही इज आस्किंग द कॉन्टैक्ट फोर्स हियर, कॉन्टैक्ट फोर्स Fc समझो। सो कॉन्टैक्ट फोर्स इज नथिंग बट इस साइड का फोर्स F1 और उस साइड का मास क्या है, ये दोनों का कंबाइंड मास m2 प्लस उस साइड का फोर्स विच इज F1 और इस साइड का F2 उस साइड का, और इस साइड का मास F1 m1 डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट इज m1 प्लस m2। बस एक ही स्टेप में अंदर आपको कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाएगा। अभी इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो कॉन्टैक्ट फोर्स इज इक्वल टू इस साइड का फोर्स 18, उस साइड के दोनों मासेस कंबाइन करो विच इज नथिंग बट 5, प्लस उस साइड का फोर्स विच इज 60, एंड सिर्फ इस साइड का मास विच इज 1 kg डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो टोटल मास क्या हो गया, तीनों सबके सब मासेस ऐड कर दो, इज गोइंग टू बी हाउ मच 6 हियर। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 25 न्यूटन आ जाएगा सिर्फ एक ही एक स्टेप के अंदर। थैंक यू। प्यारे दोस्तों, हर प्रॉब्लम को हम इतना आसान कर दिए कि बच्चा जो है क्वेश्चन देखते ही सेकंड्स के अंदर आंसर कर सकता है। अब इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से देख लो।
कॉन्टैक्ट फोर्स पूछ रहा 4 kg 2 kg एंड 1 kg, बट 4 kg एंड 2 kg के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स मालूम करना है, तो किस तरह मालूम करेंगे? हियर कॉन्टैक्ट फोर्स F बिटवीन दीज टू इज नथिंग बट क्या है वो? सिंपल मेथड इज दिस फोर्स इज पुशिंग 2 kg एंड 1 kg, ठीक है? ये फोर्स जो है 2 kg और 2 को पुश कर रहा, तो कितना हो गया 3 इंटू अप्लाइड फोर्स कितना हो गया 14 डिवाइडेड बाय नेट मास। नेट मास कितना हो रहा है 4 + 2 + 1 दैट इज गोइंग टू बी 7। बस इतना आसान है, 7 1 7 2s F इज इक्वल टू 3 2 6 न्यूटन इज योर आंसर, दैट्स इट। प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रॉब्लम को हम सिर्फ सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, नॉट मोर देन 3 सेकंड्स। 3 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो यहां पर एक्सेलरेशन पूछ रहा, तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट नेट फोर्स बाय नेट मास, ठीक है? तो अभी यहां पर नेट फोर्स क्या है? m2 दे दिया 10, ये 10 और ये 5, ठीक है? तो दोनों का डिफरेंस करेंगे, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स विल बिकम डिफरेंस। ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा, डायरेक्शन डिफरेंट हो गया, तो डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस करेंगे तो आएगा 5। तो डिफरेंस इन द मास इनटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय नेट मास, दोनों के मासेस को ऐड करेंगे, 5 × 10 15 हो गया। So 5 1s 5 3, so G/3 is going to be your answer. That's it. तरह के क्वेश्चंस नीट में अक्सर पूछे जा रहे हैं, हम इसको सलवटो में सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। अभी एक्सेलरेशन पूछ रहा ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स बाय नेट मास, और ये देखो 6 kg और 4 kg। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स, फोर्स का मतलब क्या? मास इनटू ग्रेविटी। ये डोमिनेट कर रहा, ये नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो इनका डिफरेंस लेंगे हम। तो 6 - 4 इंटू जी डालेंगे डिवाइडेड नेट फोर्स, मतलब दोनों के मासेस को ऐड करना है, यहां पर 10, ठीक है? तो ये इज इक्वल टू 2/10, 2/10 का मतलब 2/5 1/5 हो गया, इसका मतलब आपका आंसर G/5 है। ओके, सो गोइंग टू बी योर आंसर, दैट्स इट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे जो है इसको गलत सलत करके आ जाते हैं, या तो छोड़ ही देते हैं इसको, बिकॉज ही इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट द फोर्स एंड वेलोसिटी क्या दे दिया? 4√x दे दिया, x दे दिया, यहां पर x किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? बहुत आसान है, यू ऑल नो a इज इक्वल टू dv/dt, मगर x है तो डिफरेंशिएट कैसा करेंगे इसको? थोड़ा मॉडिफिकेशंस करेंगे। a इज इक्वल टू dv/dx इंटू dx/dt डालेंगे, ठीक है? सो dv/dx इंटू dx/dt डालेंगे, क्योंकि dx dx दो भी कैंसिल हो गए, फिर वापस वही आएगा। इसको इसलिए क्रिएट करना है क्योंकि यहां पर x है, तो जस्ट राइट नाउ दिस वन एक्सेलरेशन, इसको क्या बोलेंगे अभी? dx/dt इज नथिंग बट v इंटू dv/dx। ओके, नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट dv/dx, इसको dv/dx से डिफरेंशिएट करेंगे। सो dv/dx v इंटू dv/dx, सो v का मतलब 4√x, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? इफ यू डिफरेंशिएट दिस वन, एक तो क्या है v को हम ऐसे डाल दिए, अब इसको हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 आएगा, √x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? 1/2√x आएगा, ठीक है? 2 1s 2 2s, √x gets cancelled, 4 2s are, so we got acceleration now. So this is acceleration. Acceleration is equal to how much? 4 2s are 8, but F is equal to m into a. What is the mass given? 500 grams, मतलब 0.5 kg. So 0.5 into a is nothing but 8 here. So 44 is going to be your answer, 4 newtons. That's it. Friends, ये प्रीवियस ईयर जेई मेंस का क्वेश्चन है, सिंगल स्टेप में सॉल्व करेंगे इसको हम। तो सबसे पहले जो है 1000 kg वाला मास, और उसका स्पीड क्या है? 6 मीटर्स पर सेकेंड। तो मोमेंटम कंजर्वेशन, ओके, तो 6 क्या है वो? सॉरी, 1000 इंटू 6 मोमेंटम, और उसके बाद 200 एक्स्ट्रा वेट ऐड करेंगे तो क्या होता है? 1000 को 200 एक्स्ट्रा, यानी कि 1200 ऐड करने के बाद वेलोसिटी क्या है? v, ठीक है? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो हमको कितना आएगा? एक तो क्या चली जाएगा ये 6 1 6 2, सो 255 इज योर आंसर, दैट्स इट, 5 मीटर्स पर सेकंड। प्यारे बच्चों, इतना बड़ा सॉल्यूशन सिर्फ एक ही एक स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। इस तरह हमने एक कोर्स बनाया 1000 रुपए का, जो कि आपकी जिंदगी बदल सकता। अभी भी 2 महीने अगर रोजाना 4 घंटे बैठ के पढ़ेंगे ना, इंशाअल्लाह की जात से उम्मीद है 120 पक्का आएंगे, अगर ईमानदारी के साथ कोर्स को अगर इस्तेमाल कर लिए तो। अब देखो यहां पर इतना आसान क्वेश्चन, यहां पर क्या बोल रहा है? 180 बुलेट्स पर मिनट बोल के बोल रहा, क्या बोल रहा? 180 बुलेट्स पर मिनट, ओके? हाँ, इसका मतलब 1 मिनट में 180, मतलब 1 सेकंड में कितना? 180/60, यानी कि 3 बुलेट्स। तो 3 बुलेट्स बाहर निकल रहे हैं। जब भी बुलेट्स बाहर निकलेंगे तो गन पीछे की तरफ रिकॉइल होगा, तो रिकॉइल वेलोसिटी पूछ रहा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम ऑफ 3 बुलेट्स इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ए गन। तो मोमेंटम ऑफ 3 बुलेट्स का मतलब 3 इंटू मास ऑफ ए बुलेट, वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ए गन, यानी कि मास ऑफ ए गन एंड वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन। अब मास ऑफ ए गन दे दिया, ये वैल्यू दे दिया,
अब वेलोसिटी ऑफ ए गन मालूम करना है, बस सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, 10 केजी ग्राम्स को केजीस में कन्वर्ट कर दो, तो आपको आई थिंक आंसर आएगा 0.6, दैट्स इट।